Good morning, friends, and welcome to Trans India Real People, Real Emotions. We are sitting today in what many people call as the temple of the road transport industry. We are at the headquarters of All India Motor Transport Congress, formed way back in 1936. Since then, AMTC has been representing the road transport industry at various forums, various levels, and of course, in the government circles. AMTC elections have always been something which everybody looks forward to. Every 2 years, the association elects a new president from a particular zone, and this time, the president is from the North Zone. We have with us Dr. Harish Sabharwal, who is the first president of AIMTC to come from the bus operators segment. In all these years, most of the presidents have been representing the truck segment. But Dr. Harish Sabharwal comes from a background of bus operators, even though he started his journey as a truck operator. So, what are Dr. Harish Sabharwal's plans for the next 2 years? We will know more from him and specially focus on one project that has been lingering on for a very long time, the driver training school, which has been a dream of AIMTC. Let's find out from Dr. Harish Sabharwal what he plans for the association and for the industry in the next 2 years of his tenure. AIMTC के हिस्ट्री में आप पहले प्रेसिडेंट हैं जो बस सेगमेंट से उभर के आप इस पोस्ट पे आए हैं. How does that feel? How important is that? How important is that I can't say, but I think I feel this is matter of pride for our trade, for my bus operators. It hardly makes any difference to which segment I belong. मेरा जो कर्तव्य है, जिस वजह से लोगों ने मुझे चुना, जिस विश्वास से चुना, अगर मैं उस की उम्मीदों पे खरा उतर के अपने ट्रेड की, अपने ऑपरेटर्स के हितों की रक्षा के लिए अगर तत्पर हूँ और काम करके दिखाता हूँ, तो इट हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस कि वेदर आई बिलोंग टू बस सेगमेंट और ट्रक सेगमेंट. दो आई थिंक यू आर नॉट अवेयर, मैं ट्रक्स भी बहुत चलाए. 90 to 2018 तक मैं ट्रक लाइन में रहा. और ये 18 साल का पीरियड जो था वही इन सबके साथ जान पहचान का पीरियड था, जितने भी ट्रक ऑपरेटर्स हैं. तो अभी भी बिल्टी मेरे नाम से चलती है, सबरवाल फ्रेट कैरियर्स स्टिल इज ओन्ड बाय अस, बट वो मैंने थोड़ा हैंड ओवर कर दिया अपने कजन्स को. बट आई बिलोंग टू बोथ द सेगमेंट्स. But will there be more expectations from the bus segment now? Because All India में first time हुआ है. Obviously, they are expecting more. But as far as my personal opinion is concerned, I have to take both simultaneously. For me, these are two eyes, two hands. Bus segment and truck segment both will go hand to hand together. That will only that due to this I can survive. And the people who have selected me, who have elected me, who have given me their own votes, their own trust, I have to take care of that also. So I will be going through both the segments throughout my tenure of 2 years. Harishji, what are the major issues that both these segments are facing now? That is a very valid question, very valid query made by your good self. Actually, most of the time we observe that our common problems are there. More or less, yes. More or less, it is a common problem. Like now we are running after, in my priority it comes that NGT tax is a total injustice with us. It was imposed when we people were on that Euro 3 fuel, or Euro 3 norms we were following. But now when Euro 4 added blue, Euro 6, the costly technology we have adopted, we have purchased the costly vehicles, we are adding this AdBlue to that, and their scientific studies also proved that there is no pollution from these buses. Absolutely. Then why this government has continued this loot with us? Clearly it is a loot. I will take action with my team. I am in touch with my colleagues in West and Southeast. So shortly you will come to know that we have started pursuing this case in administrative level. If we will not be heard, we will be compelled to knock the door of court of law. Now, Harishji, having said that, the government is also coming down very harshly for scrapping of trucks. Like the recent increase in the fitness charges is a step towards that. They want older trucks to go out of the system so that newer, less polluting trucks come in the space. How will AMTC handle the small truckers?
Girish, that is another injustice with us, I must say. ट्रक्स पोल्यूट करते हैं तो उसमें टायर्स का, यू विल अप्रिशिएट माई वर्ड इट, बॉडी का इसका कोई रोल नहीं होता है. Correct. ना टायर्स का रोल होता है ना बॉडी का. इट इज ओनली इंजन वो पोल्यूट्स और वो गिव्स दिस एमिशन आउटसाइड. तो आप इंजन का रिप्लेसमेंट, इंजन का रेट्रोफिटमेंट, कीपिंग इन व्यू द इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ आवर कंट्री. We are not so rich, or we are not so, you can say, established that we can throw away the buses, we can scrap our trucks in regular way. It's not possible for us. हमारी इकोनॉमिक कंडीशन हमें सपोर्ट नहीं करती. हम लोग लोन्स पे गाड़ियाँ लेते हैं, और माफ़ करना, हमारे जो लोन्स हैं वो भी आप वर्ल्ड वाइड जब कंपेयर करोगे तो वो very high interest rate, yes. very high. You go in Europe, 1%, 1.5% is the correct. normal rate. That's right. And here in India, we are paying 6% plus up to 14%. Yes. So our this economic condition doesn't support us. And you know, a truck is costing 50 lakhs. So how Yeah. how will a small operator buy a truck of 50 lakhs when he has to run it for, let's say, 8 years or 10 years or 12 years? And that is also without any support by government. Though we are carrying a very essential business as a backbone, we are working. We are second highest taxpayer in India, but government is ignoring us. That is the fact. And after this NGT priority of agenda is e-challan. That is also total injustice with us. वो ई चलान जो है कि इसको हवाई चलान बोल रहे हैं, वो इट्स अ मैटर ऑफ कलेक्शन एंड करप्शन ओनली. Absolutely. वो ई चलान की बात को लेंगे तो फिर आप पूरा उसको फॉलो कीजिए. फिर आप वेब कैमरा भी दीजिए, फिर आप यूनिफॉर्म कैमरा भी दीजिए. जो लोग बैठे हैं उनको कैमरा उनके हेड पे लगे हुए हैं. आप सिंगापुर देखिए, आप फ्रांस देखिए, पेरिस देखिए, सबके कैप्स में कैमरा लगे हुए हैं. एंड एन ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर इन ऑफिस कैन लिसन द कन्वर्सेशन कि ड्राइवर और इंस्पेक्टर का क्या बात हो रहा है. फिर मालूम पड़ेगा क्या वर्किंग होता है. उसके बाद हमने रिमूवल ऑफ चेक पोस्ट, मेरे प्रीडिसेसर्स ने लिया हुआ है मुद्दा. इट्स वेरी जेन्युइन मुद्दा. जब आपने हमें जीएसटी के दायरे में कर दिया, ईवी बिल जैसी जगहों में लगा दिया, तो जब इतना सब कुछ, इस तरह डॉक्यूमेंटेशन पहले ही हो गया, तो फिर चेक पोस्ट का क्या जरूरत है. Correct. वो चेक्स कलेक्शन पॉइंट बना दिया आपने. वो तो आपके लिए एक अड्डा बन गए. चाहे वो गवर्नमेंट का पैसा इकट्ठा कर ले, नहीं तो अपना जेब भर रहे हैं. आप देखिए ना सौरभ का केस, कितने हजार करोड़ रुपए निकल रहा है, कांस्टेबल से निकल रहा है. गवर्नमेंट को अपनी आंखें खोलनी चाहिए ना. जब हम वन कंट्री बोलते हैं, why have these barriers? And our PM says, always says, one nation, one tax, one nation, one tax. Then what is that? कि आप जगह जगह पे चुंगियाँ लगाएंगे, हमारा डीजल भी वेस्ट करेंगे, हमें जाम्स में भी फंसाएंगे, हमारे ट्रिप्स भी लेट करेंगे, और हमारे साथ लूट भी करेंगे. ड्राइवर हैरेसमेंट वो अलग. बिल्कुल. इसके बाद हमने आपने एजेंडा पूछा, तो हम VLTT और पैनिक बटन पे जाएंगे. यहाँ मेरी दोनों सेगमेंट्स में आके थोड़ा डिफरेंस नजर आता है. पैनिक बटन इज, यू कैन से, कि वो पैसेंजर अगर कोई परेशानी में आता है तो और उसका फिर इंफ्रास्ट्रक्चर और कंट्रोल रूम होना बहुत जरूरी है. राइट. जो आज तक अभी किसी भी स्टेट ने एस्टेब्लिश नहीं. हाँ, एक आपका बैकएंड सिस्टम हो तो सेंस बनता है. भाई आप पैनिक बटन दबाएं तो कहीं ना कहीं तो उसका बजर होना, कहीं तो उसको पता लगे किसने आना है, कौन सी पुलिस आ रही है, कौन सी आपकी लोकल अथॉरिटीज उसको केयर कर रही है. नो वन. 5 रुपए का एक बटन है, उसको दबाओ, उसको फिटनेस कर देते हो. देयर इज नो लॉजिक, इट्स नो फन बिहाइंड दैट. वो क्यों लगाया, किस लिए लगाया, जब तुम्हारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. फिर ट्रक्स में तो लोड है, गुड्स हैं, उसमें पैसेंजर नहीं है. ट्रक्स में लगाने का तो कोई औचित्य ही नहीं है, लॉजिक ही नहीं है. भाई ट्रक्स में कौन से बटन दबाएगा, कौन बटन दबाएगा? सामान तो उठ के बटन दबाएगा. तो ये तो थोड़ा सा इनको क्लियरिटी देनी पड़ेगी. और इसके साथ साथ हम टोल को बड़ा सीरियसली लेंगे, और ले भी रहे हैं ऑलरेडी. तो ये मुख्य कुछ पॉइंट हैं जो अभी टॉप ऑफ द एजेंडा में हैं. साथ साथ टोल में व्हाट इज आवर डिमांड नाउ? टोल में, हाँ जी सर, टोल में हम चाहते तो थे सीमलेस ट्रैवलिंग, कि हमारे टोल पे हमारे ट्रक्स तो कम से कम नहीं रुकने चाहिए. बट फास्टैग के चलते मोरलेस तो सीमलेस थोड़ा आराम आया. बट इट्स अ स्मॉल डिले नाउ. फास्टैग के भी बड़े इश्यूज हैं. वो कैरी फॉरवर्डिंग करते, वो पैसा जल्दी खत्म दिखा देते हैं. उसमें भी कहीं ना कहीं जहाँ पर मैनुअल आपने लोगों को इन्वॉल्व कर दिया, इश्यूज है वो. हाँ, टेक इश्यूज है उसमें. हम वन टाइम टोल के लिए हम हमेशा हमने लिख के दिया सरकार को. जब मैं इस कमेटी में था, वाइस प्रेसिडेंट था, तब से लिखते आ रहे हैं. हमारे प्रीडेसेसर सारे, बलमलकीत सिंह जी, सेनगोप्पा जी, सब इस पे काम करते आ रहे हैं. सबने, निमेश पटेल जी, इवन इन्होंने तो गुजरात वालों ने केस भी डाला हुआ है. तो वो केस में देखिए ना सरकार ने क्या मैनिपुलेशन किया उसमें. यू गो थ्रू, वी विल नॉट लीव दैट केस, वी विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न. मेरा बात हुआ उस दिन भी गुजरात में कि हम इस केस को डट के लड़ेंगे, अप टू सुप्रीम कोर्ट लेवल लड़ेंगे. ये गवर्नमेंट ने रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से अगर कोई मैनिपुलेशन कर दिया, वी विल नॉट टॉलरेट दिस. वी टेक इट विद ऑल आवर एफर्ट्स इन दैट.
But tell me, when I talk to transporters, most of them tell me कि हमारा देश अभी profits बचा ही नहीं है, we are on wafer thin margins. But somehow the government feels transporters के पास बहुत ही ज़्यादा पैसा है. तो अब Because रोड पे कोई भी आपको रोक लेता है. वो हमारी मजबूरी है, वो कुछ लोगों का हाथ नेचर है. Do you think transporters are making profits? नो, एट प्रेजेंट आई कैन से कि ऐसा नहीं है कि कुछ लोग भी नहीं बना रहे. देखो, इसके लिए हमें ग्राउंड लेवल पे मेहनत करनी पड़ेगी. कुछ हमारे जो पुराने बाबा आदम के ज़माने के फेयर चल रहे हैं, फेयर स्ट्रक्चर चल रहा है तरीका. एक हमारे मित्र ने जिसका माल उसका हमाल चलाया था, वो एक बहुत बड़ा खर्चा अपने सिर से उठाने वाली बात थी. ऐसे ही कुछ हमें इश्यूज लाने पड़ेंगे, कुछ चेंजेस हमें अपने. जब देखिए वक्त बदल रहा है, सरकारें बदल रही हैं, तौर तरीके बदल रहे हैं, टेक्निक बदल रही है, आपका सिस्टम सारा चेंज हो रहा है, तो हमें भी अपने आप को चेंज करना पड़ेगा. हमने अगर प्रॉफिट में आना है तो हमें अपनी बैलेंस शीट के साथ साथ अपनी कॉस्ट शीट पे भी नज़र रखनी पड़ेगी. कॉस्ट शीट बनानी है ड्राइवर के साथ बैठ के, उसमें कुछ चीज़ें फिक्स करनी पड़ेंगी, कुछ मिनिमम भाड़ा तय करना पड़ेगा आपस में, जो कि सरकारें हमारे में इंटरेस्ट नहीं ले रही. बट समहाउ अगर हम लोग आपस में बैठ जाते हैं यूनाइटेड होके, तो वी कैन फिक्स कि भाई इससे कम में कोई नहीं चलेगा. Correct. और बढ़िया होगा कि हम कोशिश करें ये लमसम रेट की बजाय हम इसको किलोमीटर बेसिस पर लाएं, वजन के साथ साथ प्रोपोर्शनेट करके. तो इसको कहीं ना कहीं अपलिफ्ट करना पड़ेगा. अब देखते जाइए, आपकी महंगाई और ऑपरेशनल कॉस्ट हमारी डे बाई डे बढ़ती जा रही है. ना कभी टायर कम आया, आपने सुना होगा, ना कभी डीजल का रेट कम आया, ना रास्ते के टोल कम हुए, बढ़े ही हैं. वेल, एवरीथिंग इज इन्फ्लेटेड, सब चीज़ें बढ़ रही हैं. तो कॉस्ट कम करने का या भाड़ा कम करने का अर्थ तो सीधा सीधा नुकसान पहुंचाना और अपने आप को घाटे में डालना है. दैट्स व्हाट मोस्ट ऑफ द ऑपरेटर्स आर डूइंग. बिकॉज दो चीज़ें, एक तो लैक ऑफ नॉलेज, दे आर अनएजुकेटेड, और दूसरा ये कि कभी अपनी कॉस्ट शीट को उस नज़र से देखा ही नहीं. वो हिसाब बाद में करते हैं, पहले काम शुरू कर देते हैं. So will AIMTC or you take up the task of educating these people कि this is your operating cost and आपका freight at least इतना होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए. क्या ये मिशन होगा आपका? एक बिल्कुल होना चाहिए, और हम पूरी कोशिश करेंगे. आपने जो बात बोली कि हमारा जैसे एक मिशन हम लेके चल रहे हैं अपना, कि हमने ग्राउंड रूट पे मेंबर्स बढ़ाने हैं, हमने अपने आप को ज़्यादा स्ट्रेंथन दिखाना है, यूनाइटेड होना है, और आवाज़ नीचे तक पहुँचे, तो हमें ग्राउंड रूट की मेंबरशिप बढ़ानी पड़ेगी, जिसमें अभी भी हमारा थोड़ा बहुत हम अनटच चल रहे हैं. तो जब हम ये काम करेंगे ग्राउंड रूट की मेंबरशिप बढ़ाने का, तो हमें इसके लिए पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण करना है. और जब हिंदुस्तान का भ्रमण करने की बारी आएगी, तो खास साथ ये एजेंडा चल सकता है कि अपने भाड़ों को, अपने फ्रेट को, अपने ऑपरेशन कॉस्ट को, इन सबको कैलकुलेट करो. बल्कि मैं कोशिश करूँगा कि हमारे ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से 2, 4, 5 एग्जाम्पल बन के खर्चों के जो कॉस्ट शीट होती है हमारी, ऑपरेशनल कॉस्ट का जो होता है, वो हम उसको बंटवाएं जोन वाइज हर जगह, ताकि उनकी जो लिख नहीं सकते या कैलकुलेट नहीं करते, कम से कम पढ़ तो सकते हैं कि आज मेरी लॉरी इतनी जगह से इतनी जगह जा रही है, बेंगलोर जा रही है, बेंगलोर से कलकत्ता जा रही है, कलकत्ता से चेन्नई जा रही है, तो इसका खर्चा आ क्या रहा है, मुझे बच क्या रहा है. एक रफ आइडिया तो हो, एक फिगर तो हो उसके दिमाग में. We'll definitely do that. It is in our mind and it is in our agenda. हम ये करेंगे, और हम अपने ड्राइवर्स को भी एजुकेट करेंगे. ड्राइवर्स की अपलिफ्टमेंट के भी हमारे पास प्लान्स हैं. हमने मिनिस्ट्री में भी लिखा, ड्राइवर्स डे भी मनाया, और हमारी कोशिश चल रही है कि हम ड्राइवर्स को थोड़ा, जो उनका एक मान सम्मान बनता है. देखिए, वो हमारे पार्टनर्स हैं. सही माने में हम पैसा लगाते हैं, वो गाड़ी ना चलाएं तो वो पैसा लगाना बेकार हो गया. वो गाड़ी ढंग से चलाएं, ठीक सुचारू रूप से हमारा माल पहुंचाएं, सेफ पहुंचाएं, और हमें 2 पैसे बचे तो उनका भी बीच में आधा पैसा हिस्सा बनता है, जो भी उनका एक शेयर बनता है, और उनको अपलिफ्ट करें, थोड़ा उनका लिविंग स्टाइल चेंज करें, तो उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे पूरा. We will continue our interaction with Dr. Harish Sabharwal after this very short break. You are watching Trans India, real people, real emotions. स्कूल बच्चों का दूसरा घर होता है, और इस घर का ख्याल रखना एक प्रिंसिपल के लिए आसान नहीं. पढ़ाई के साथ बच्चों का आराम, उनकी सेफ्टी, छोटी से छोटी चीज़ मेरी प्रायोरिटी है. वैसे ही स्कूल बस चुनना भी एक बहुत बड़ा डिसीजन था. पेरेंट्स का पीस ऑफ माइंड, मैनेजमेंट का भरोसा और बजट साथ लिए चलना पड़ता है. इसीलिए कभी कभी फर्म भी बनना पड़ता है. आखिर कोई अपने बच्चों की जिम्मेदारी मुझे दे रहा है, तो कोई बजट की. लेकिन इतने सालों में एक चीज़ समझ आई है, अगर सही डिसीजन लें तो सबसे ज़्यादा प्यार भी प्रिंसिपल को ही मिलता है.
चुनिए महिंद्रा क्रूजियर स्कूल बसेस। यह है मजबूत ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, एंटी लॉक ब्रेकिंग, एंटी रोल बार, पैराबोलिक सस्पेंशन, IMAX, वाइडर सीट्स और बेस्ट इन क्लास माइलेज के साथ बच्चों के लिए सेफ और बाकी सब के लिए सबसे स्मार्ट चॉइस महिंद्रा क्रूजियर स्कूल बस। हरीश जी, ड्राइवर शॉर्टेज जो है वो एक बहुत ही सीरियस मुद्दा हो गया है। वी आर फेसिंग अक्यूट शॉर्टेज। हाउ कैन AMTC हेल्प इन दिस? सर, AMTC अकेले जो अपने बल पर कर सकती है, एक ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल हमारे पास है, उसको हम पूरा तैयार कराने के लिए भी पूरी कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी हद तक वो फाइनल स्टेज पे पहुंचा हुआ है। 80% ऑफ वर्क इज ओवर। That is just the building part of it. Building part of it, but simultaneously we are in talk with the government also. यूपी गवर्नमेंट से बात चल रही है, चीफ सेक्रेटरी साहब से चल रही है कि हम ड्राइवर्स को ट्रेन करने में इंटरेस्टेड नहीं, हम ड्राइवर की प्रोडक्शन में इंटरेस्टेड है। ड्राइवर्स को ट्रेन करना, तो जब आपका ड्राइवर का जो ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल अपने आप में टाइटल है, इट क्लियरली इंडिकेट्स दैट कि ड्राइवर के पास लाइसेंस है तो आके ट्रेंड होगा। बट वी आर इंटरेस्टेड कि इधर एक तो फिटनेस सेंटर बनना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट के हाथों में जब फिटनेस जा रही है तो उसमें हमारे को बहुत लूट नज़र आ रही है। तो कोई एक ऐसी हमारी संस्था भी हो जिसको ये ऑथराइज करें, और हमें इनसे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से यूपी से पॉजिटिव साइन मिला है कि वो उस कार्य में हमारी पूरी हेल्प करेंगे। दूसरा, ड्राइवर्स को प्रोड्यूस करने की बात को उन्होंने बहुत इंकरेज किया है। इवन हम इस बात को लेकर अब नेक्स्ट वीक गडकरी साहब के पास जा रहे हैं कि हमें स्टिमुलेटर या कुछ ऐसा प्रोविजन करके दिया जाए, जिसके लिए उन्होंने हाँ भरी है हमें। ये आज 6 महीने पहले की बात है, जब बात हुई थी, तो हम उसको रिवाइव करेंगे और कोशिश करेंगे स्कूल में जो ड्राइवर्स आए वो तरीके से ड्राइविंग सीख के और अपना लाइसेंस भी चाहे यूपी से जहाँ से भी बनाएं, इसको मान्यता मिले। हमारे स्कूल को मान्यता मिलेगी तो अपने आप ड्राइवर्स प्रोड्यूस होने शुरू होंगे, और हम कोशिश करेंगे कि अपने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के माध्यम से जहाँ जहाँ भी बन सकते हैं जोन वाइज ये स्कूल डेवलप करें। बट हरीश जी, हाउ डू यू अट्रैक्ट पीपल टुवर्ड्स दिस प्रोफेशन? जो आज दिक्कत आ रही है कि ड्राइवर का बेटा ही जब ड्राइवर बनने को तैयार नहीं है, डिस्पाइट द फैक्ट कि आज एक लॉन्ग हॉल ड्राइवर 40 से 50 हज़ार रुपये महीने टेक होम ले जा रहा है, जो एक शायद ग्रेजुएट और इंजीनियर भी नहीं कमा रहा है। हाउ विल यू मेक दिस प्रोफेशन अट्रैक्टिव? देखिए, इसके लिए कहीं हमें उनको भी नियमित करना होगा। उनका जो डिजर्विंग मान सम्मान है, मीन्स जो उनका स्टेटस है, उसके हिसाब से सैलरीज, उनकी फैसिलिटी। सबसे पहले आज उनके घर में कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई मेडिक्लेम जैसी चीज़ नहीं है, वो कहीं से कवर नहीं हो पा रहे, वो ये सही में कवर नहीं हो पा रहे। वो आयुष्मान भवन जो स्कीम आई है प्रधानमंत्री निवास योजना की, उसमें कवर नहीं हो पा रहे। तो हमें इस कैटेगरी को अगर अपलिफ्ट करना है तो ये सारी लड़ाइयाँ गवर्नमेंट के साथ हर फ्रंट पे हमें लड़नी होंगी। उस तबके को अगर हम अपलिफ्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनके बच्चे भी आना शुरू होंगे। उन्हें जब अपनी सर्वाइवल लगेगा, अपनी लाइफ, हर बंदा जब बड़ा होता है, स्कूल के बाद कॉलेज या स्कूल के बाद अपना फ्यूचर सोचता है, तो सबसे पहले सोचता है कि मेरी जो लाइफ टाइम स्पेल है उसका सर्वाइवल कैसे होगा, मैं कैसे कमाऊंगा, कैसे बच्चे पालूंगा, कैसे बीवी को पालूंगा, और कैसे मेरा सर्वाइवल होगा। अगर हर बंदे को जब ड्राइवर के बेटे को सर्वाइवल नज़र आएगा, वाइबिलिटी नज़र आएगी, तो ऑटोमेटिकली दे विल स्टार्ट कमिंग इन द सेम प्रोफेशन। उनको रिस्पेक्ट देनी है, उनको उनके प्रोफेशन के हिसाब से जो डिजर्विंग चीज़ें हैं, जैसे मैंने बोला लाइफ इंश्योरेंस, हमारी बात भी हो रही है। गवर्नमेंट ने भी हमें यस किया, हमारे 2 मेंबर पार्लियामेंट्स में उस दिन कमिट करके गए हैं ड्राइवर डे पे। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले 3 महीने में ड्राइवर्स का इंश्योरेंस पूरे हिंदुस्तान के ड्राइवर्स को पहुंचाएं। लॉयंस क्लब के साथ हमारा टाई अप हुआ है। ड्राइवर की सेफ्टी हमारे पैसेंजर और हमारे माल की सेफ्टी है। उनके फ्री आई चेकअप करवाएंगे, कैटरेक्ट के ऑपरेशन करवाएंगे। उसके लिए लॉयंस क्लब ने पूरा इंडिया में जोन वाइज हमें हाँ किया है कि आप कहीं भी किसी भी जोन में 100 करके ड्राइवर्स बुलाइए, सबके फ्री आई चेकअप होंगे। तो कहीं पर उनको एक मान सम्मान मिलेगा, समाज में उनको स्थान मिलेगा जो उनको चाहिए, जैसे बाहर विदेशों में है। तो ऑटोमेटिकली दे विल स्टार्ट कमिंग अगेन टू दिस प्रोफेशन। अदरवाइज तो उनको नज़र आ रहा है कि लाइफ नहीं है यहाँ पर कोई खास। हर जी, ट्रेडिशनली इट हैज़ बीन सीन कि AMTC के जो वाइस प्रेसिडेंट्स हैं उनका रोल बहुत ही लिमिटेड होता है। डू यू प्लान टू गिव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू योर वाइस प्रेसिडेंट्स कि बाकी 3 जोन्स में भी अच्छा काम हो? डू यू हैव एनी प्लान? बिल्कुल, देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है, स्पीड ऑफ द बॉस इज द स्पीड ऑफ द टीम। इट इज़ हाउ यू वर्क एंड हाउ यू टेक इट। तो एज वेल एज माई कैप्टनसी इज कंसर्न, मेरे तो वाइस प्रेसिडेंट बिल्कुल फ्री बैठने वाले नहीं हैं।
इतना होमवर्क उनके लिए डिसाइड किया और मैं ऑलरेडी एजेंडा पे काम कर रहा हूँ, बट इट विल टेक सम टाइम। मैंने अभी 10 दिन हुए हैं मुझे भी चार्ज लिए हुए, 10 दिन तो 12 दिन हुए होंगे। तो लेट मी डू सम होमवर्क। कुछ पेपर वर्क है जो पेंडिंग है, जो हमें निपटाना है, कुछ पेपर वर्क है जो हमारा टेक ओवर के बाद जरूरी होता है, वो कर लें। देन एक पहली मीटिंग कॉल करने के बाद इस बार हम आपको 2 साल में दिखाएंगे कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो डमी सीट नहीं है हमारी। हमारा वाइस प्रेसिडेंट को काम दिया जाए तो, और मेरे को तो बाय द वे आई एम फीलिंग प्राउड इन शेयरिंग विद यू कि तीनों वाइस प्रेसिडेंट्स बहुत अच्छे मिले, बहुत अच्छे मिले, बहुत। actually, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम इन लास्ट 10 years आई मस्ट से, एंड आई फील प्राउड इन दैट। तो ये जो वाइस प्रेसिडेंट्स हैं ये पूरे काम करने वाले लोग हैं। अगर इनको घर में बिठा के एक शोपीस की तरह रखना होता तो वाइस प्रेसिडेंट लड़वाने की जरूरत नहीं थी। एक एक को हाथ जोड़ के लाए कि भाई आप लोग आइए, ट्रेड को आपकी ज़रूरत है, आपको ज़रूरत है कि नहीं। तो चाहे वो जितेंद्र भाई हैं, चाहे प्रमोद जी हैं, चाहे साउथ से हमारे ईश्वर जी हैं, तो ये तीनों लोग सक्षम हैं, अपने अपनी फील्ड में पूरा काम कर चुके हैं, अपना जीवन पूरा संस्थाओं को दे चुके हैं। तो इनके ये 2 साल में अपने साथ चला के वेस्ट नहीं होने दूंगा। कोशिश करूंगा कि हर जगह इनको अपने साथ या अपने से आगे रखूंगा। हरीश जी, एक चीज़ और देखा गया है ट्रेडिशनली AIMTC में जो आपके फॉर्मर प्रेसिडेंट्स हैं उनका रोल तो एक एडवाइज़र का होता है, बट कहीं ना कहीं वो एडवाइज़र से आगे बढ़ के एक इंटरफियरेंस की तरफ चला जाता है। हाउ विल यू टैकल देम? देखिए, अपना अपना एक्सपीरियंस हर प्रेसिडेंट ने अपने टेन्योर में लिया है और काम भी किया है, और हमेशा हमें भी एडवाइस देते रहते हैं। और हमें अच्छा लगता है अगर वो हमें कोई पॉजिटिव पॉइंट बताएं या कोई काम करने की कोई कार्यशैली बताएं या नेतृत्व करें, तो उनके इंटरफेरेंस से मुझे नहीं लगता हमें कोई ऐसी परेशानी है। उनका बल्कि गाइडेंस सिर पे रहने से थोड़ा हौसला बढ़ता है काम करने का, और एक्सपीरियंस भी मिलता है, बिकॉज दे पीपल आर ऑलरेडी एक्सपीरियंस, दे हैव गॉन थ्रू दिस टनल बिफोर अस। तो ये अच्छी बात है, वो दखल दें और वो बल्कि एक्टिव रहें, तो हमारी भी जवाबदारी बनती है। मेरी अपनी सोच है कि जहाँ सीनियर एक्टिव होते हैं, जहाँ पर पुराने हमारे प्रेसिडेंट्स जो चेयरमैन है, प्रेसिडेंट है, ये एक्टिव होंगे, वहाँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। आई एम आंसरेबल टू ऑल दैट। मेरी एक आंख हमेशा रहेगी कि भाई मेरे काम पे नजर है, मैं आंसरेबल हूँ। तो मैं जब तक मैं आंसरेबल हूँ, मैं ड्यूटी बाउंड हूँ, और ड्यूटी बाउंड हूँ तो वो अपने आप ट्रेड का और ऑपरेटर का भला करने के लिए फिर वो बाइंडिंग है ही हमारे ऊपर, और वो हम करेंगे। फाइनली हरीश जी, रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है देश के इकोनॉमी के लिए, हर एक आदमी के लिए इनफैक्ट। डू यू थिंक दिस इंडस्ट्री डिजर्व्स रिकग्निशन, अ स्पेशल स्टेटस, जिससे हमारा आगे का रोड मैप ईजी हो? ऑफ कोर्स, ये इट इज अ लाइक ड्रीम फॉर अस, और ये होना चाहिए। वो डिजर्व दिस। हम अपने हर डिमांड में ट्रांसपोर्ट पॉलिसी अब लेके आ रहे हैं। हम सरकार से भी आग्रह कर रहे हैं कि इतनी बड़ी सेगमेंट, इतना बड़ा तबका, भाई आप हमारे को आप अपनी ट्रेन्स के साथ भी कंपेयर कर लीजिए, शिप्स के साथ भी कर लीजिए, बाय एयर भी कर लीजिए, बट रोड इंडस्ट्री को आप बीट नहीं कर सकते, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो। ये मैं फैक्ट आपको बड़े गर्व के साथ बता रहा हूँ। तो जब ये रोड सेगमेंट का इतना हमारा रोल है और हम बैकबोन की तरह काम कर रहे हैं, इकोनॉमी में भी ग्रोथ दे रहे हैं, और जो GDP है उसमें भी ग्रोथ में हमारा रोल होता है, तो इसको कम से कम एक इंडस्ट्री का दर्जा मिलना बहुत ज़रूरी है। और गवर्नमेंट को चाहिए इस तरफ कदम उठाए, स्पेशल सेगमेंट का दर्जा भी दें। और जो अभी हमने बजट से पहले लिख के दिया इनको कि हम, जब आप मानते हो कि हम एसेंशियल गुड्स को कैरी करने में सक्षम हैं और करते हैं, और आपसे ज़्यादा करते हैं, ये एडमिटेड फैक्ट है गवर्नमेंट में भी, तो हमारी वो जो एसेंशियल सेगमेंट वाली गाड़ियाँ हैं, कम से कम उनको तो कोई स्पेशल दर्जा दिया जाए। उन पर ये टोल टैक्स जैसा कैंसिल नहीं होना चाहिए। अगर टोल टैक्स लेना भी है तो डिस्काउंटेड लीजिए, क्योंकि वो आपके लिए फल, घी, सब्जी, मेडिसिन्स, ऐसी रोज़मर्रा की ज़रूरी आइटम्स जो पुअर कैटेगरी को भी जाती है, वो आप दे रहे हैं। तो आप हमसे टोल टैक्स लेके फ्री बीज कर रहे हो। आप अपने वोट बैंक को पक्का करने के लिए ऐसी जो वस्तुएं ढो रहे हैं हम आवश्यक, और उसमें से भी आप टैक्स ले रहे हो, तो वो हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। शायद हमारी आवाज़ उठाने में उसमें कमी रही है, जिसको हमने अपने एजेंडा पे प्रायोरिटी पे ली। दूसरी बात, जो ऐसी गाड़ियाँ जो एसेंशियल गुड्स ले रही हैं, उनको टोल टैक्स अगर मुक्त नहीं करना, कंसेशनल करके कम से कम एक सेपरेट लाइन दी जाए। वो गाड़ियाँ वहाँ पर आकर ना रुकें, ना 2-2 घंटे खड़ी हो, ना डीजल वेस्ट करें, ना वो पेरिशेबल आइटम्स हैं उनको उनकी कोई खराबी हो। और दवाइयाँ हैं या सब्जी है या फल फ्रूट है, कुछ भी है, घी है, तेल है, ये सब टाइम पे पहुँचना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमें उम्मीद है हम आने वाले समय में सरकार को ये बता पाएंगे कि इसमें इनको GST और टोल टैक्स से किसी तरीके इन दोनों इस सेगमेंट को मुक्ति मिलनी चाहिए। And how will you strengthen your ties with Nitin Gadkari? Because All India Motor Transport Congress has not met him, or he has not come to any of our meetings for the last, I think, I haven't seen him for the last 7-8 years.
There are many reasons. कुछ yeah. कुछ तो एक gap है. How will you bridge that gap? We will try to fulfill that gap by meeting him, by convincing him that we are there with the government at all stages and we will be with the government. But simultaneously कहीं ना कहीं हमारे जो rights हैं वो affect हो रहे हैं. जहाँ पर हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है. He's a very intellectual type person, you can say. But any reason why he doesn't interact with AMTC? सर कुछ पॉसिबिलिटी है, कुछ हमारे अंदर कमी रही होगी कि शायद ढंग से अप्रोच नहीं किया गया या कुछ मुद्दों पे जैसे स्ट्राइक को लेके थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट रहा. आई वाज पार्ट ऑफ दैट टीम. लेकिन कोशिश हमेशा ये रही है कि वो हमारी नोडल मिनिस्ट्री है. Absolutely. हमारा उनके बिना आप कह सकते हैं हिंदी में कि गुजारा ही नहीं है. गुजारा नहीं, correct. तो गुजारा नहीं है. तो जब अभी हमारे महमूद जी से अच्छे टर्म्स हैं, जो भी वहाँ पर ज्वाइंट सेक्रेटरी है या सेक्रेटरी उमा शंकर जी आए हैं, इमीडिएट हमारी बात हुई है उनसे. उन्होंने बोला कि पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के इमीडिएट बाद उनको बुलाइए. आई वांट टू सिट विद एएमटीसी. दिस इज अ काइंड ऑफ ऑनर फॉर अस कि उसने हमें खड़े होकर खुद बोला कि मैं आपके साथ बैठना चाहता हूँ. एक दो नहीं, बहुत इशू है जिन पर बात करनी है. इट मीन्स एक तो एस्टेब्लिश फैक्टर है कि गवर्नमेंट जो है वो एएमटीसी को रिकॉग्नाइज करती है. उनको मालूम है कि दिस इज द ओनली एपेक्स बॉडी इन इंडिया who leads the operators. तो दैट इज फाइन विद अस. और ये बॉडी ये डिजर्व भी करती है. रहा बात कि पर्सन टू पर्सन, जैसे आपने बोला गडकरी साहब के साथ, तो हम पास्ट का तो नहीं कुछ कह सकते कैसे हुआ, क्यों माहौल ठीक नहीं हुआ या But you meant whatever has gone. बट आने वाले टाइम में आपको दिखाएंगे गडकरी साहब की फेवरेट एसोसिएशन ऑल इंडिया ही होगी और वो हमारे लिए काम भी करेंगे. दैट मच आई कैन अश्योर यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म. That was a conversation with Dr. Harish Sabharwal, the newly elected president of All India Motor Transport Congress. Tough times ahead, but it looks like Dr. Sabharwal has his plans well lined up. We'll keep you posted on the activities at AIMTC. But until next week, stay safe and drive safe. Jai Hind.